Okay. We have talked about DAC, and next lab is on uh, ADC and PWM. So and timers. Sorry, timers. So timers, as I said, are integral part of any embedded system. And we have talked about uses of timers and how they can be configured. The only thing is to the lab will be basically you want to uh, make the timer run from a place and go here so that it overflows. And this time, what is the time needed? Uh, you can have, for example, if this is 1 millisecond, you want 1 millisecond time. So this time should be 1 millisecond. So ideally speaking, and so this time is basically divided into the clock pulse that is given to the timer. So you are making these steps on the timer. Uh, सर ये इतना क्लियर नहीं है, अगर आप लाइट ऑफ कर दें या जूम इन कर लें, ब्लैक मार्कर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है शायद आपको। all right. So you want to measure the using some clock pulses over here. So for example, if this is whatever time you want to hear 1 millisecond, and if your clock pulse is 1 microsecond, then you want this distance to be 1000, so that when 1000 clock pulses go, time is what is needed over before this overflow. This so ideally speaking, you don't want a clock to be too large or too small. For example, if you want to measure this distance, you don't want the clock to be this much. So then you wouldn't know whether these are 3 clock pulses or these are 2 clock pulses. That my time. So the clock pulse should not be like, if you want to measure distance from here to say faculty housing, you don't want to measure that in kilometers. मैं कहूँ जी किलोमीटर में बताओ प्रिसाइज कितना होगा, तो किलोमीटर में तो शायद 1 किलोमीटर आंसर है. So the time you want to measure would be, the best thing is to measure in meters. You don't want to measure in centimeters either कि यहाँ से फैकल्टी हाउसिंग तक का टाइम सेंटीमीटर्स में कितना होगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये इस बोर्ड की विड्थ मेजर करें, तो you don't want to measure it in meters. So you want to measure this in centimeters probably,
or inches or centimeters. So if you measure it in meters, it will be either 2 meter or 1 meter, depending how you round your answer. If you round your ceiling function में round करेंगे तो ये 2 मीटर के बराबर हो जाएगा, फ्लोर फंक्शन पे राउंड करेंगे तो ये 1 मीटर पे बराबर हो जाएगा. So you want to measure your time, you want to choose a clock which gives you enough accuracy, but not too much. You don't want to measure this in millimeters. मिलीमीटर की एक्यूरेसी नहीं चाहिए मुझे जब मैंने ये इस वाली मेजर करनी. Okay, so when I want to measure the distance between the pins over here, then probably I would like to measure this in millimeters. कि पिन के बीच में कितना distance. So, and that for that I need some uh, uh, measuring device that can measure in micro. What do you want to measure? So time is a scale, is a unit, a step. So no matter what direction you go, you have to be precise over here. Okay, you don't want to overdo it. You don't want to be too small, and don't want to be too large. So you have you are given, always given, unless it is a design problem where you have the freedom to choose your crystal frequency. Crystal frequency can go up to 20 megahertz. Probably 24 megahertz for this PIC IC. But let's say it can go up to 20 megahertz. So if it is a design problem, then you want to select a crystal so that your application uh, fits into that. You don't want your system to run too fast. The faster is the system, the more unreliable is the system. So if you want to design a traffic light problem, you don't want to run it on few gigahertz frequency, where the times are only changing, the events are occurring after seconds. You don't want to run into a gigahertz frequency. तो जी मैंने ये ट्रैफिक लाइट बनाई है जो कि जिसमें प्रोसेसर 5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, 5 तो ज्यादा कह दिया, 3.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ. व्हाट्स द पॉइंट? So the frequency, crystal frequency should be comparable to the application at which time events occur. As I said, most real-time events occur with time greater than 1 millisecond. Sports event need 1 millisecond accuracy. So most events that occur in real life need 1 millisecond accuracy. So 1 millisecond is quite large. So, but it depends on the application. For example, if you want to measure an embedded system for fire alarm, so the alarm is not required to sound within an accuracy of microseconds or milliseconds. After the fire is detected, smoke is detected, a couple of seconds wouldn't hurt. Although I know कि बहुत ज्यादा टाइम अगर लगाएगा तो सिस्टम तो आग तो जो है वो एक्सपोनेंशियली करती है, स्प्रेड करती है, बट couple of seconds are no problem. So this is what the idea of the use of timer is from designer point of view, that you don't want to measure it too fast and you don't want to measure it too close. So for example, I want to set a clock timer to generate a
5-second clock. 5-second clock. How will I go about designing? अगर मैंने ये मुझे चॉइस दी है कि क्रिस्टल भी मैं अपनी फ्रीक्वेंसी का चूज करूं and everything I can choose on my own, then there is a separate thing. But if the crystal is given, क्रिस्टल है मेरे पास 8 मेगाहर्ट्ज की, this is crystal. So the system frequency will be 2 megahertz divided by 4. तो अगर मैं इसको देखें 2 मेगाहर्ट्ज से मैं किस किस फ्रीक्वेंसी तक मैक्सिमम में जा सकता हूं इफ आई यूज 256 प्री स्केलर. Maximum I can go is this 256 pre-scaler. So what is this then? If you would divide 2 megahertz by 256, what do you get? हाँ भाई, कौन है जो इसका जवाब देगा? हाँ भाई, कौन है कैलकुलेटर वाला बंदा हमारे पास सबसे अच्छा? ईमान करती होती है, ईमान. 7812.5. 7812.5. फिर 2 मेगाहर्ट्ज को 256 से डिवाइड करना था, राइट? हाँ जी. हाँ जी. और अगर मैं वैसे ही रखूं 1 का प्री स्केलर रखूं, that means I do not choose the prescaler. I let it go run at one frequency. Then the maximum frequency is 2 megahertz. So 7800 will not fit in 258-bit timer. Because the 8-bit timer, I have only 8-bit timer. This will go up to maximum of 255. So I cannot preload a timer to count this much value. So this is the maximum clock that we get. So in 1 second, I have these. So for 5 seconds, oh sorry, I don't know what I was saying. For 5 seconds, how many clock pulses are needed here, and how many clock pulses are needed here for 5 seconds? कितने होंगे? हाँ भाई, Ivan, to calculate time of 5 seconds, how many clock pulses will be needed? हाँ भाई, जवाब नहीं आया. Anybody? 39,062.5. लेकिन आप किसी और से टैली कर लें प्लीज. अच्छा, अभी कर लेते हैं. So we need time required is 5 सेकंड. इसको 10 सेकंड कर देते हैं टोटल टाइम. ऐसे ही चला. So we need 5 मिलीसेकंड टाइम, जिसके बाद हमने क्लॉक पल्स को वो करना है, टॉगल करना है. We need to toggle some output after 5 milliseconds.
So time required is 5 seconds. 5 seconds, sorry. Total time for one T will be 10 seconds, but we are interested in this time, 5 seconds. So for 5 seconds, how many clock pulses needed? At 812 frequency hertz, the clock pulses needed will be clock cycles needed will be equal to 5 divided by 78112. है इसे t निकालें, t is equal to 1 over f is equal to कितना आता है? t is equal to 1 over f करें जरा. Sir, 1.28 into 10 raised to the minus 4. 1.4 into 10 raised to 1.28. Sir, 1.28. 1.28 10 raised to minus 4, which is equal to 0.1828 millisecond. नहीं, मुझे क्या हो गया? Sir, सही था वही सही. ये सही था, हाँ सॉरी. और ये एक आपकी यार्ड स्टिक ये है. इस यार्ड स्टिक को यूज करके आपने ये करना है 5 सेकंड. So T is this, so we want to go with this yardstick of 0.128 millisecond. I want to measure 5 second time. तो इसमें कितने यार्डस्टिक्स आएंगे? तो इसको 5 सेकंड को 0.128 से डिवाइड करें या इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है. 39,062.5. So the total clock cycle required will be divided by 0.128 millisecond. So the total clock cycle required will be आ जाते हैं कितने? 39,000 62.5. 62.5 Sir, 39,062.5. वही करने लगा था. 62 इतने क्लॉक साइकिल, मतलब इसके 0.5 तो हम पूरे नहीं कर सकते. हम या तो इससे ज्यादा का ही लेंगे या इससे कम का लेंगे. 39,600. तो a 16-bit timer can count up to 2 raised to power 16 clock cycles, which is equal to 64536 64 के. तो इसमें तो ये देखें, ये 16 बिट के टाइमर में ये वाला टाइम हम ये कर सकेंगे. We will not be able to count these clock cycles in 8-bit timer. अब मुझे कोई बताए, इसका आंसर बताए कि फर्ज करें मेरे पास इस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं सिर्फ 8-बिट टाइमर ही यूज कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? कोई सॉल्यूशन बताएं मुझे. उमैर फकाउर रहमान, आप बताएं. जी सर. जाग रहे हैं ना आप? जी जी. हाँ जी. मैं ये कह रहा था कि हमें तो ये वाला काउंट चाहिए. इसके लिए 16-बिट टाइमर में तो ये फिट आ जाएगा 65536. लेकिन अगर मेरे पास 8-बिट का टाइमर है, मेरे पास ये 16-बिट का है ही नहीं है. इंजीनियरिंग डिजाइन है और सारे टाइमर मैंने कहीं और यूज किए हुए हैं, सिर्फ एक 8-बिट का टाइमर मुझे अवेलेबल है. मैं क्या करूंगा इस डिजाइन में? क्या करूं कि मैं इतना तो काउंट कर ही नहीं सकता. 5 सेकंड का काउंट कैसे लूं? 8 ये तो 255 से बड़ा है ना ये वाला काउंट. जी सर. तो क्या करूं? सर आपने प्री स्केलर भी किया हुआ है 256, तो और आगे और आगे जा नहीं सकते. 8 और तो आगे जा नहीं सकते. वेरी गुड.
पी स्केलर इससे बड़ा तो हम ले ही नहीं सकते, तो क्या सर करें फिर? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं कर सकते? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कैसे करेंगे? सर अगर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी छोटी होगी तो T is 1/f, टाइम पीरियड बड़ा आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे ना, बताएं, फ्रीक्वेंसी छोटी कैसे करें? तो ये नहीं पता। नहीं पता? रामिश मजीद, आप बताएं फ्रीक्वेंसी छोटी कैसे करें? रामिश, हाँ सुबह बताएं। सर मे बी क्रिस्टल छोटी फ्रीक्वेंसी का ले लें। हाँ जी, यही आंसर है, वेरी गुड, इसमें क्या मुश्किल है? वेल डन तुबा, वेल डन। खैर मैं आपको चॉकलेट पेश कर देता हूँ। थैंक यू सर। मैंने भी यही बताया था, मुझे भी दें चॉकलेट। क्रिस्टल छोटी का कोई नाम नहीं बताया किसी ने। सर मैंने बताया था। बताया था? जी क्यों सर। भाई? अच्छा, ये चले क्रिस्टल आपको भी चॉकलेट देते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने बताया था वो शायद माइक ऑफ करके तो नहीं बताया था। नहीं नहीं सर। ओके, सो वी नीड स्मॉलर क्रिस्टल, वेल डन वेल डन, दोनों को बहुत बहुत। स्मॉलर क्रिस्टल विल वर्क फॉर दिस, so this can be 1 megahertz crystal. Remember, this is ये वाला जो प्रोसेसर है ये डीसी से चलना शुरू होता है, मतलब ये इसकी 1 हर्ट्ज की क्रिस्टल भी लगा सकते हैं आप। इसकी क्लॉक आप 1 हर्ट्ज देंगे तो एक इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होगी, और छोटा मोटा प्रोग्राम चलाने के लिए कम से कम 1 सदी चाहिए होगी, विच इज नॉट अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक आई कैन वेट। So this is the spec says that this processor can run on 0 to 24 megahertz or something like that. तो 0 पे नहीं चलेगा, जाहिर है 0 पे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि डीसी वैल्यू पे तो नहीं चलेगा, ये क्लॉक एज पे चलता है। तो दैट बेसिकली मींस के अप टू दिस एनी नॉन जीरो एनी अप्रोप्रिएट रीजनेबल, और ये भी नहीं है कि आप उसको स्लो कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, इस बीच में स्लो भी कर सकते हैं, डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो अक्सर एम्बेडेड में इतना आसान नहीं होता ये काम करना। दूसरे प्रोसेसर में तो ये ना कि जब कुछ ना हो रहा हो तो वो फ्रीक्वेंसी डाउन कर देता है। तो सिंस द पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, इट रिड्यूसेस पावर। फार्मूला है उसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, आई थिंक। याद नहीं आ रहा सही फार्मूला, E2X स्क्वायर है या V स्क्वायर F है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर पावर कंजप्शन चेंज करती है। ये वाली फर्ज करें 16 बिट का टाइमर है, तो आपको फर्ज करें 16 बिट का टाइमर है विच कैन गो अप टू दिस, तो आपको 39062 लोड करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू इन हेक्स? 39062 को हेक्स में कैलकुलेट करें, किसके बराबर आएगी? हाँ भाई ईमान, 39062 वैल्यू है, इसको हमने 16 बिट के टाइमर में लोड करना है, हमारे पास 16 बिट का टाइमर है, 39062 वैल्यूज में लोड करनी है। तो हेक्स में क्या होता है 39062? सर 9896। 9892 हेक्स में 9896। 9896 हेक्स। ये एच भी लिख देते हैं, छोटा एच भी लिख देते हैं, 0x भी लिख देते हैं, तो ये परेशान ना हुआ करें आप। ऑल ऑफ दीज आर ओके टू राइट। सी में आपने यही लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं,
लेकिन in writing you will find some programming language also accept this के end में h लिखा हो और start होना चाहिए 0 से। तो इवन 4-bit वैल्यू को भी 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। एनीवे सो 9896, अब इसको हमने ये 9896 है, इसने 16 बिट के टाइमर ने ओवरफ्लो होना है एफ 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 पे। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस हमने मेजर करना है, माइनस करें इसमें से 9896 एफ 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 में, क्योंकि यहां से अगर चलेगा तो ये से मैक्सिमम जाना है एफ 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 तक। हमने काउंट करना है सच दैट दिस टाइम बिकम्स इक्वल टू 5 सेकेंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 7.8 kilohertz, nearly 7.8 kilohertz. तो यहां तक जाना है, तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा so that I can start our my timer from here to make it run up to 39,062 clock cycles, which is in hex is equal to this. So I subtract this value from this. Oh, sorry, this value from this. So what is the answer? Iman, फिर हेक्स में बताना। hex में बता दें। Hex में बता दें। 6769। 6769, इंटरेस्टिंग। इधर भी 9896 आ रहा है, उधर 67। तो दिस वैल्यू शुड बी 67, और ये वैल्यू होनी चाहिए 6769। यहां से हम स्टार्ट करेंगे 6769 से स्टार्ट करेंगे इसको, 9896 क्लॉक पल्सेस के बाद इट विल ओवरफ्लो। So this should be our starting point, 6769, and it will wait until these many clock cycles, which our requirement is. So 6769 hex हमने load करना है into the processor, into this timer. अब टाइमर 8 बिट का है, तो 8 बिट का मतलब ये कि आपको थोड़ा सा पाइपिंग करनी पड़ेगी। 16 बिट की वैल्यू लोड करें अगर 16 बिट रजिस्टर में, तो आपको पाइपिंग करनी पड़ती है, मार्शलिंग करनी पड़ती है। 8 बिट एट अ टाइम यू कैन लोड ऑन टू दिस टाइमर। सो टू डू दैट you load this into the higher side of the timer. So timer 0x must be equal to 0x67, timer 0L must be equal to 0x69. So now the timer is loaded, and the timer mode should be selected to be 16-bit timer. So when this timer starts, then it will, when it will count this many more clock cycles, it will overflow, because this plus this is equal to FFFF. So these many clock cycle will take it to overflow. तो अगर डेसिमल में रह के करना हो तो फिर कैसे करेंगे? उसमें ये करेंगे कि आपका रिक्वायर्ड काउंट है 39062 है, ये आपने करना है। तो आप कहेंगे टाइमर 0h इज इक्वल टू 1 shifted left, 16 times, so this becomes equal to FFFF, या 1 plus 1, FFFF plus 1, 1 shifted left 16 times, minus
39062 whole of this इस होल को क्या करेंगे बताएगा कोई होल ऑफ दिस होल ऑफ दिस आंसर आ गया ना एक आंसर आया ये वाला ये वाला आंसर आया ये सारा तो टाइमर में नहीं जा सकता जाहिर है टाइमर ने 8 बिट का डालना है क्या करूं अब एनीबॉडी रोशन सलीम क्या करूं 8 बिट का आंसर चाहिए मुझे शायद ये भी 16 बिट का नहीं बनेगा ना ये 17 बिट का बन जाएगा 1 शिफ्टेड लेस 16 टाइम्स तो मैं इसके यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ यही लिख देता हूँ 6 5 5 3 5 3 6 जो है वो बड़ा हो जाता है 16 बिट रेंज से तो 2 raised power 16 minus 1 is equal to this number 6 5 5 3 5 ये लिख दिया मैंने अब आंसर को क्या करूं मैंने इसमें डालना है कोई आंसर नहीं आ रहा कोई आंसर कोई क्या हो गया मेरी क्लास को हसन रजा हसन रजा Sir, I can't think of anything अभी. अच्छा राइट सो बेसिकली आपने क्या करना है इसको शिफ्ट राइट 8 टाइम्स ये 16 बिट का नंबर है जब इसको शिफ्ट राइट करेंगे 16 बिट का नंबर विच इज 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 दिस इज द नंबर हेयर जब इसको शिफ्ट राइट करेंगे 8 टाइम्स तो ये 8 बिट क्या होंगी ये गायब हो जाएंगी और नंबर बात जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 विच इज इक्वल टू 67 तो ये नंबर टाइमर 0 में आ जाएगा अब टाइमर 0L में कैसे क्या लोड करूं आखिरी चीज बस आज की वो होगी 6 5 5 3 5 माइनस 3 9 0 6 2 यहां पे क्या लिखूं शिफ्ट लेफ्ट ना शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा नंबर इसको मैं करूंगा वैसे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वैसे इसको मैं करूंगा एंड लॉजिक एंड एक होता है दो होते हैं इफ स्टेटमेंट जो एंड डालते हैं वो एक एंड होता है दो होते हैं मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त दो होते हैं यहाँ पर फिर एक ही डालें एंड 0x FF उससे ये होगा कि ये नंबर जब 6 7 6 9 0x FF से एंड होगा तो क्या होगा सारे 1 9 से जब एंड होंगे तो यहाँ 9 बचेगा सारे 1 6 से जब एंड होंगे तो 6 बचेगा और यहाँ पे 0 0 है जब ये एंड होंगे तो यहाँ पे 0 0 बचेगा तो ये टाइमर इसमें डाला तो वेन एवर यू आर गोइंग टू सी सम किसी बंदे की सॉफ्टवेयर आपको नेट में मिलेगी ना कि टाइमर कैसे लोड करते हैं तो क्वाइट लाइकली कि आप ये दोनों आपको
वैल्यूज वहां पे मिलेंगी। इसमें ये है कि आप ऊपर वाली 8 बिट हम निकाल रहे हैं इसमें से 6769 में से, और इसमें ये है कि हम नीचे वाली 8 बिट को कर रहे हैं, बाकी सारी 0 कर रहे हैं। So this is the how you load it. So I think this is all about timers. मेरा ख्याल, thank you very much. I'll stop recording here. Any questions? No questions. All right. So I will stop recording here. Thank you. Bye bye. God bless you all. Stay safe and pray that it doesn't come back again.